सो आई थिंक यश आप ही बताओ दिस प्रोफाइल इज योर्स कि इनिशियली हमारी प्रोफाइल क्या थी एंड हमने कैसे उसको चेंज किया. इनिशियली हमारे प्रोफाइल में लाइक कुछ सर्टिफिकेशंस थे और इनिशियली मेरे प्रोफाइल में जैसे आपको पता है कुछ प्रोजेक्ट वर्क थे, उसके साथ कुछ सर्टिफिकेशन कोर्सेज थे, रिसर्च वर्क थे, पेटेंट्स थे, ये सब था. बट द मेजर मिसिंग वाज द वर्क एक्सपीरियंस व्हिच यू फिगर आउट एट दैट टाइम. एंड आफ्टर दैट मैंने एक छोटी सी इंटर्नशिप की, 2 महीने की इंटर्नशिप, एंड वो उसका जो सर्टिफिकेट था वो भी उसका जो एक्सपीरियंस था वो भी प्रोफाइल को बूस्ट. Okay, so BTech in aerospace and 8.25 we had, but work experience was something that was lacking. ठीक है. What was the strategy? फिर क्या किया? ठीक है सर, when we like we were discussing तो मैंने कहा यार वर्क एक्सपीरियंस मिसिंग है. दैट इज अ मेजर पॉइंट बट इट्स नॉट दैट वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हमारी डिग्री ही 2023 में खत्म हुई थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? तो 2023 में खत्म हुआ. We had to go for a 24 intake. You are just out of college, right? The university will not expect you to have a work experience by then, ठीक है? तो eventually what we decided कि ठीक है try करते हैं. If we get an internship, कुछ add हो जाएगा वहाँ पे because these courses they want people who have practical experience. Not just they know you are very good at research. He has a lot of projects. Great. But what is the practical application to it? To identify that कि यार मेरी practical application ये रही है. I have applied my knowledge of these research papers in this field, particularly doing these works. But Indian I think आपने GRE नहीं लिया था, right? ये लिया था but it was like अच्छा सही लिया था. The score was very low. What was the score? Are you comfortable sharing? Yes, it was 294. 294. Yes. Okay. तो एक्सपेक्ट कितना कर रहे थे? मतलब मॉक्स में you were scoring more. मॉक्स में 320 प्लस स्कोर आ रहा था. और मेन डे पे 290. So as a student, what was your major concern? Starting से लेके end तक कुछ एक चीज हो गया, ये मिलेगा. Is it about the university? कि what was your concern? एडमिट आएगा या नहीं? That was the और because we were कहाँ से आएगा ये नहीं था, कहाँ से आएगा एडमिट, ये था यार आएगा कि नहीं आएगा. अभी we are having 4 offers. 4 to 5 offers. 4 to 5 offers. Nice. That was the concern because सारे हमने जो यूनिवर्सिटीज शॉर्टलिस्ट की थी वो टॉप यूनिवर्सिटीज थी. एंड तो उनका I was adamant on that point कि मुझे इसी में जाना है. So सर ने बोला भी था like बैकअप ऑप्शंस रखते हैं. नहीं सर नहीं. But that's a very good thing that you are starting से clear हो यश कि मुझे यही करना है, यही जाना है, no matter what. आधे students mainly in this era क्योंकि options इतने सारे होते हैं ना, they tend to get confused कि क्या करना है क्या नहीं करना. Columbia University, Washington University, USC Whitby, Florida Tech, and many more universities. We submitted 10 applications within just 7 days. Hello everyone and welcome to another podcast from the series of Fall 2024 Admits, and today we have with us one of our most brightest students, Yash Mamdole, who got into an Ivy League college. So today we are here to discuss what does it take to crack Columbia. Hi Karthik, hi Yash, welcome to the AMP podcast. So before we are starting, मैं एक बहुत जनरल सा एक इंस्ट्रक्शन स्टार्टिंग में देती हूँ. इसको पॉडकास्ट इज मोर टुवर्ड्स लाइक अ कन्वर्सेशन दैट वी आर डूइंग. तो जितना अनफिल्टर्ड रख सकते हैं, जितना हम ओपन हो सकते हैं, लेट्स जस्ट डू दैट एंड जस्ट कन्वर्स विद ईच अदर. एंड वी आर हियर टू मोर डिस्कस अबाउट कि प्रोसेस में किया क्या था, हुआ क्या था, व्हाट एग्जैक्टली डिड इट टेक टू क्रैक कोलंबिया, राइट? एंड बहुत मिथ्स हैं कि कोर्स चेंज नहीं हो सकता. यू डिड योर कोर्स चेंज, डोमेन चेंज हुआ है. We'll be speaking about all those things, tackling that, but as unfiltered as possible. ठीक है? ठीक है, perfect. So to start with, Yash, Columbia offer है, और भी 2-3 universities have good schools on our plate. How do you feel? So I just feel like out of the world. There's no other feeling like that. I haven't achieved something like this. So I was not expecting that I'll be getting admit from Ivy League. जब एप्लीकेशन स्टार्ट किए थे उस टाइम पे तो कोई आइडिया भी नहीं था, कुछ एक माइंड में था भी नहीं कि आईवी लीग कॉलेज में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा, एडमिट आ जाएगा वहाँ से. वो एक प्रोसेस में भी नहीं था. फर्स्ट में तो प्रोसेस में भी नहीं था. बट
it just happened. So no, we had our first session यश उस टाइम पे with what mindset did you come कि यार कहीं पे भी बस हो जाए मेरा, or you were like you know let's crack the best. Yes. So जब मैंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया था, जब फर्स्ट कॉन्वर्सेशन था अपना, सो उससे पहले मैं कुछ कंसल्टेंसी से भी और लाइक था कांटेक्ट, लाइक आई वाज इन कांटेक्ट विद सम अदर कंसल्टेंसीज, बट एक चीज़ मुझे वहाँ एक पॉइंट जो था वो मुझे सही लगा आपके पॉइंट से कि जो आपकी लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज है, लाइक दोज यूनिवर्सिटीज विच आर इन द बेस्ट, वो हम लोग वहाँ पे अप्लाई करेंगे, नॉट कि कोई ऐसी यूनिवर्सिटीज जहाँ पे जिनकी रैंकिंग्स इतनी अच्छी नहीं है, जो टॉप यूनिवर्सिटीज नहीं है. सो दैट वाज माय पॉइंट कि मुझे यहाँ पे जाना है. हाँ, ओके गॉट इट. तो ठीक है कार्तिक, कमिंग टू यू, हाउ वाज इट व्हेन यश का प्रोफाइल फर्स्ट टाइम केम टू यू? व्हाट वाज योर रिएक्शन? So first of all, जब यश का प्रोफाइल आया, I was like very thorough with the research work that he did. तो first of all I looked at कि अच्छा यार क्या क्या research work है, because जो course है that is very research intensive, and only your research work, projects, alignment, marks, all those things, it was like a combination. So it was a lot of things that he had done. I was first of all intrigued, fascinated कि यार okay, you know, this is a profile that you know I can work wonders with. So that was my first impression. Eventually, you know, when we got on a session, हमने बात करी, we got to know each other. वैसे भी, you know, professionally भी as well, but you know, knowing each other is like अच्छा जानते हैं, पता भी नहीं चला कि okay, you know, बहुत ज़्यादा टाइम हुआ है साथ में, या it felt like we have known each other for a very long time. And I think it was like the profile had everything, but again कुछ चीज़ें थी कि यार जहाँ पे it needed refinement. It needed more showcasing of his original thought process, his knowledge basically. So that was my first perspective. But what was the first profile like? Where can you just make me walk through? Okay. So I think Yash, आप ही बताओ. This profile is yours. कि initially हमारी profile क्या थी and हमने कैसे उसको change किया? Initially हमारे प्रोफाइल में लाइक कुछ सर्टिफिकेशंस थे, और इनिशियली मेरे प्रोफाइल में जैसा आपको पता है कुछ प्रोजेक्ट वर्क थे, उसके साथ कुछ सर्टिफिकेशन कोर्सेज थे, रिसर्च वर्क थे, पेटेंट्स थे, ये सब था. बट द मेजर मिसिंग वाज द वर्क एक्सपीरियंस व्हिच यू फिगर आउट एट दैट टाइम. एंड आफ्टर दैट मैंने एक छोटी सी इंटर्नशिप की, 2 महीने की इंटर्नशिप, एंड वो उसका जो सर्टिफिकेट था वो भी उसका जो एक्सपीरियंस था वो भी प्रोफाइल को बूस्ट किया. राइट. एंड यहाँ पे ना यार जैसे हमने बात भी करी थी जब स्टार्टिंग में, तो वी डिस्कस कि यार मार्क्स इज अ वेरी बिग, ठीक है, तो क्या क्या रही थी हमारी CGPA, बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे सबको पता है कि क्या CGPA था, या इस CGPA के साथ भी कैन यू अचीव दीज वंडर्स. सो मेरा CGPA था 8.25. Right. That was my CGPA. It was in BTech, right? Yes. BTech in aerospace engineering. Aerospace engineering. Yes. Okay. ठीक है, तो BTech in aerospace and 8.25 we had, but work experience was something that was lacking. ठीक है. What was the strategy? फिर क्या किया? ठीक है. So when we were discussing, तो मैंने कहा यार work experience missing है. That is a major point, but it's not that very important because हमारी डिग्री ही 2023 में खत्म हुई थी, if I'm not wrong, right? तो 2023 में खत्म हुआ. We had to go for a 24 intake. You are just out of college, right? The university will not expect you to have a work experience by then, ठीक है. तो eventually what we decided कि ठीक है try करते हैं, if we get an internship कुछ add हो जाएगा वहाँ पे, because these courses they want people who have practical experience, not just you know they know you are very good at research, he has a lot of projects, great, but you know what is the practical application to it, to identify that कि यार मेरी practical application ये रही है, I have applied my knowledge of these research papers in this field, particularly you know doing these works. So I think that was the major strategy. Again, it was optional because already we knew if that isn't here, we always have a contingency plan कि यार ये बैकअप में तो है, ये नहीं तो ये सही है तो हम करेंगे ही, बट ये हो जाए तो प्रोफाइल और बेटर हो जाएगा. दैट वाज द मेजर स्ट्रैटेजी. एंड आई थिंक इंटर्नशिप पे भी यश ने मेरे साथ एक एक्सपीरियंस शेयर किया था, तो यश थोड़ा बताओ उस पर कि क्या रहा इंटर्नशिप के साथ.
इंटर्नशिप के साथ इंटर्नशिप के साथ साथ मैं जीआरई के लिए प्रिपेयर कर रहा था उस टाइम पे Right. तो वर्किंग आवर्स मेंटेन करना मुश्किल हो रहा था सो दैट वाज द थिंग बट इंटर्नशिप में वो इंटर्नशिप एक्चुअली पहले ज़्यादा मन से थी वो इवेंचुअली बाद में जो कोर्स वर्क था उनका वो ख़त्म हो गया जितना उनका रिक्वायरमेंट था वो बिफोर टाइम खत्म हो गया तो दैट वाज अ गुड थिंग तो उस वजह से आगे जो आइल्स का प्रिपरेशन जीआरई वाज नॉट गुड बट आइल्स का प्रिपरेशन जो किया एंड आगे जो प्रोफाइल जल्दी हो पोस्ट हुई आगे बढ़ के हम लोग ने जो एप्लीकेशन जनरली सबमिट किए हाँ बिफोर द डेडलाइंस तो वो उसी वजह से पॉसिबल हो पाया कि जब इंटर्नशिप अर्ली खत्म हो गई और उसके बाद प्रोसेस भी बहुत जल्दी हुई ग्रेट एंड इंटर्नशिप्स का भी व्हाट आई हैव टू ऐड ऑन टू दिस इज कि जब आपके पास इंटर्नशिप आप शो करता है एज अ फ्रेशर तो द यूनिवर्सिटीज दे डोंट वांट अ लॉट ऑफ थिंग्स दे आर वेरी मिनिमल दे वांट कि अच्छा आपके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस रहे बिकॉज सो दैट यू कैन शोकेस इट इन योर एसओपीज एंड इट लुक्स गुड देयर राइट इट एड्स ऑन टू द शोकेसिंग ऑफ योर प्रोफाइल तो आई थिंक दैट हेल्प और वो प्रोजेक्ट जल्दी खत्म हुआ एंड दैट वाज अ मेजर थिंग बिकॉज अगर वो टाइमलाइन नहीं मैच करती तो प्रॉब्लम होती बिकॉज आवर एप्लीकेशन वुड हैव बीन वेरी डिलेड एंड आई डोंट थिंक सो कि उसके बाद ये पॉसिबल होता बट इंडियन आई थिंक आपने जीआरई नहीं लिया था राइट ये लिया था बट इट वाज अच्छा सही लिया था द स्कोर वाज वेरी लो व्हाट वाज द स्कोर आर यू कंफर्टेबल शेयरिंग यस इट वाज 294 294 ओके तो एक्सपेक्ट कितना कर रहे थे मतलब मॉक्स में यू वर स्कोरिंग मॉक्स में 320 प्लस स्कोर आ रहा था और मेन डे पे 290 सो देन फिर जीआरई वेवर्स वी डिडंट थिंक हम जीआरई एक और बार लेंगे नहीं सोचा था बट टाइमलाइन का भी इशू था तो दैट वाज द पॉइंट उस टाइम पे उस वक्त जब तक जीआरई का रिजल्ट नहीं आया था तब तक हमारा फोकस था कार्तिक सर ने जो यूनिवर्सिटीज शॉर्टलिस्ट करके दी थी और जो हमारा फोकस था वो विद जीआरई था सारी यूनिवर्सिटीज विद जीआरई देयर वाज नो प्लान बी नो देयर वाज नो प्लान बी ओके एंड जैसे रिजल्ट आया उसके बाद हमने रियलाइज किया कि देयर शुड बी प्लान right and eventually मैंने यश के लिए I remember कि when we are setting up the timeline so the timeline is divided very well you know what you are doing you have your targets in front of you so sorry but ये enroll कब हुए थे when did we start with the process which month August 23 August मतलब just touching the R1 exactly just touching the R1 and that was the major thing because वहाँ पे timeline हमारे लिए बहुत important रहता है तो when you see the timeline sheet तो वहाँ पे you see the proper dates proper targets proper outputs that we are expecting तो I remember मैंने यश के लिए 320 रखा था GRE का target and हमारा plan भी बिल्कुल sorted था we had those plans we had mocks every week we are connecting तो when he told me give me a call कि यार सर नहीं हो पाया GRE बहुत लो स्कोर आया मैंने कहा अच्छा कितना स्कोर आया 294 का in my mind I had कि यार एक बार ही और GRE ले लेते हैं ठीक है कि चलो यार okay at least we'll apply to the university list that we have decided then one day he said कि सर GRE तो नहीं कर पाएंगे कुछ सोचते हैं then that was the time when we decided we were I think close to November we were in November I think that's what I remember जब हमारा GRE का रिजल्ट आ गया था तो तब तक हमने R1 में कुछ अप्लाई नहीं किया R1 I will clarify on the deadlines क्योंकि deadlines में क्या होता है जो इनकी deadlines होती है for aerospace engineering and aeronautics the deadlines are not in rounds they are in periods so basically let's say they have 1 or 2 final deadlines so the final deadlines were majorly in December अच्छा ओके सो वहाँ पे हमारे पास था टाइम टिल दिसंबर तो ऐसे कि ले लेते हैं यार दोबारा से बट वी वर सिटिंग एट द मिड ऑफ नवंबर तो यश ने कहा नहीं यहाँ तो थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा डिफिकल्ट हो जाएगा सो इट वुड हैव डिसरप्टेड द टाइमलाइन एंड इवेंचुअली यस वो फिर इफेक्ट आता तो ठीक है सो आई बिलीव यू हैड अ क्लैरिटी पहले से कि बाहर जाना है राइट एंड देन यू स्टार्टेड ऑफ विद द प्रोसेस इन अगस्त एंड यू न्यू कि R1 है तो व्हाई एग्जैक्टली दैट हैपेंड सो मैम फर्स्ट मैं सोच रहा था कि मैं खुद से करूँगा ओके सो
जैसे मैं स्टार्ट किया प्रोसेस, सो ऐसा लगा कुछ टाइम बाद कि नहीं, हेल्प लेनी चाहिए। खुद से कब स्टार्ट किया? लाइक खुद से जब स्टार्ट किया था तब इट वाज मंथ ऑफ जून था। ओके, जून, ओके। हाँ, क्योंकि मई में मेरा सेशन खत्म हुआ था, कॉलेज खत्म हुआ था यूनिवर्सिटी से, सो जून में मैंने स्टार्ट किया था। एंड माय फर्स्ट प्लान वाज टू प्रिपेयर फॉर जीआरई एंड आईएलटीएस, और उसके बाद देखेंगे एडमिशंस। एग्जैक्टली। जो नॉर्मल स्टूडेंट जो भी अप्लाई करता है वो यही सोचता है कि पहले जीआरई आईएलटीएस का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद होगा जो भी होगा। बट आई वाज रॉन्ग। वो मुझे लाइक मंथ ऑफ जुलाई एंड में मुझे पता चल गया आई एम रॉन्ग, कि मैं कहीं ना कहीं तो गलत हो रहा हूँ। दैट्स व्हाई कि अगर डेडलाइन चल रही है और अगर मैं अक्टूबर में भी एग्जाम दे रहा हूँ जीआरई का, अक्टूबर में जीआरई और आईएलटीएस दे रहा हूँ, सो वन मंथ के अंदर बाकी सब पूरा प्रोफाइल क्रिएट करके सब सबमिट करना, एंड दैट इज नॉट पॉसिबल, एग्जैक्टली इम्पॉसिबल काइंड ऑफ थिंग। सो फिर मैंने उस टाइम पे सोचा कि नो, आई विल टेक सम प्रोफेशनल। सो उस टाइम पे फिर कंसल्टेंसीज का सर्च करने लगा, एंड देन I had a first conversation with you. So we were the first ones जिससे आपकी बात हुई थी? Yes. अच्छा, okay, हाँ। बस फिर एनरोल कर लिया। तो I think ये बहुत common notion होता है with students as well. अभी भी I'll tell you Yash and Karthik as the students I am talking as well, मुझे ये बोलते हैं September 25 बहुत टाइम है, अभी तो काफी टाइम है, आराम से करेंगे, अक्टूबर नवंबर तक खुलेगा। I think we really need to throw more light on कि timeline कितना important होता है, because students feel कि एक महीने में ये सारी चीजें हो जाएंगे, and when we actually get into it then becomes very overwhelming. Right. तो timeline पे I think GRE and IELTS is something जहाँ पे यश ने वो problem face की, particularly IELTS पे भी। IELTS दे के आए थे, है ना? Yes, my score was 6.5 that. So वो हर that was not enough for universities like big universities, Columbia के लिए, USC के लिए, वो score enough नहीं था। वहाँ पे minimum requirement ही 7 था। ओके, सो फिर इस मैट्रिक से जो अर्श मैम थे उन्होंने हेल्प किया, एंड लाइक 15 डेज के अंदर मैंने आईएलटीएस दे दिया। 15 डेज के 7 परफेक्ट। सो इवेंचुअली ना लाइक द नोशन, जो एक नोशन है, वो नोशन ये है कि मैं पहले जीआरई आईएलटीएस दे देता हूँ, उसके बाद आई लुक फॉर यूनिवर्सिटीज एंड स्टार्ट अप्लाइंग। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल मेरा जैसे यश का भी था, आई टेक योर एग्जाम्पल, ठीक है? तो जीआरई दिया, नहीं आया स्कोर, आईएलटीएस हमारे पास पहले था 6.5। व्हेन यू स्टार्टेड लुकिंग फॉर द यूनिवर्सिटीज, यू सॉ यार मेरा तो एलिजिबल ही नहीं है कहीं पे, देन यू वुड फील डीमोटिवेटेड, राइट? सो व्हाट द टाइमलाइन डज इज इट गिव्स यू क्लैरिटी, राइट? इट टेल्स यू ओके, यू नो हाउ बेटर प्रिपेयर्ड यू कैन बी। अगर कुछ गैप है तो आप अपना फिल कर लो, राइट? यू हैव दैट टाइम टू फिल योर गैप्स। So what I would suggest is, and what timeline clarity I would try to give the students for this intake is, enroll maximum by July. Start with your process by June, July, right? Because the R1 hits in September, October. Every year the R1s they will change, right? It is not that कि अगर आज like last year intake में अगर August है तो deadline August ही रहेगी. No, it will change to at least 5 or 6 days ahead or before the time as well. तो अगर आप जून जुलाई में स्टार्ट करते हो विद योर ओन रिसर्च फर्स्ट, तो पहले सिट एंड आइडेंटिफाई योर रिसर्च, बिकॉज आईएलटीएस और जीआरई में यू विल बी स्पेंडिंग मनी टू, राइट? सो फर्स्ट सी वेयर यू आर एलिजिबल, राइट? इफ यू वांट प्रोफेशनल हेल्प, सीक दैट, बिकॉज वहां पे भी आपको एक सेट ऑफ क्लैरिटी चाहिए होता है हमेशा। So see your eligible universities, see what you are lacking, then plan your IELTS and GRE, and I believe that there are a lot of universities जहाँ पे GRE चाहिए ही नहीं, कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी वहाँ पे IELTS भी नहीं चाहिए, राइट? इफ यू आर गोइंग फॉर अ टेक्निकल कोर्स तो आपको IELTS, yes you need that, but if you are going for a management course or any other course आपको नहीं चाहिए होता majorly. So majorly वही है timeline पे, then obviously you are better prepared for your R1s. You can apply in your R1s as with more clarity and with more confidence, I would say. ठीक है. I would want to still address the biggest elephant in the room कि aerospace engineering, so you came for the same as well, I believe. आपने उसी domain में पूरा you were looking forward to it, but now you are going ahead with mechanical engineering. Okay, so this course is particularly related to aerospace engineering. This is not the core mechanical engineering course, because the specializations, like the specialization on which I am going, for which I am going, that is
energy systems, and lots of courses from my area of interest, like propulsion, human space flight, and thermodynamics. So those are included in this course. So, Okay. that's why I have chosen this, University of Columbia and mechanical engineering especially. So my question is to you, क्योंकि what I feel is कि mechanical पे जब हम बात कर रहे थे तो initially I was like कि यार नहीं aerospace ही करते हैं. I was pushing you towards aerospace कि नहीं that is your field. You are more compatible with that field. तो in terms of any other reason apart from कि यार आपके specializations तो थे mechanical में, why do you think you shifted to mechanical and why should a person consider mechanical instead of aerospace? Specifically for USA, there is a thing like ITAR guidelines. Right. So there are restrictions for students who graduate. They are not able to seek a job. Oh. Okay. After they have to move towards the PhD. Okay. Like after completing their MS. There is 99% chances you will not fall into the job. Okay. So job market, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जॉब मार्केट एरोस्पेस में नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे एक्चुअली एरोस्पेस डिफेंस सेक्टर में आता है. सो एरोस्पेस डिफेंस से रिलेटेड यूएसए में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं. सो दैट्स द थिंग. सो जो जॉब बचते हैं वो रिलेटेड टू मैकेनिकल फील्ड बचते हैं स्टार्टिंग में. यस, दैट्स द थिंग. तो यहाँ पे एक और है कि अब जैसे मैकेनिकल, इफ आई एम नॉट गोइंग फॉर एरोस्पेस, यू आर गोइंग फॉर मैकेनिकल विद द स्पेशलाइजेशन, जो हमारी स्पेशलाइजेशन है, तो उसके बाद जॉब प्रोस्पेक्ट्स कैसे रखते हैं? कैन आई वेंचर बैक टू एरोस्पेस एंड एरोस्पेस इंजीनियरिंग? यस, एक पॉइंट के बाद जब एक्सपीरियंस हो जाता है और ग्रीन कार्ड्स वगैरह जब मिल जाता है यूएस में, देन एरोस्पेस की तरफ आप शिफ्ट हो सकते हैं. That's the thing. Okay, that's the thing. You have basically आपको रेजिडेंट वहाँ पे पहले होना पड़ेगा. Only then you can go there because वहाँ पे डिफेंस इंडस्ट्री, वो डिफेंस के विदिन आ जाता है एरोस्पेस एंड एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग. और एक और चीज़ है, जैसे मैकेनिकल से जो प्रोस्पेक्टिव है वो ब्रॉड हो गया है. राइट. सो उसमें और फायदा है, जॉब मार्केट बड़ा हो गया. राइट. सो अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा मिलेगी. That's good. ठीक है. तो अभी कार्तिक यू मेंशन कि वी हैड अ लॉट ऑफ रिसर्च वर्क एज वेल, है ना, आपने बहुत रिसर्च इंटर्नशिप्स किए एंड देयर इज अ पेटेंट एज इन योर नेम, है ना. एक पेटेंट हमारा हो रखा है, वन इज ऑनगोइंग, अभी पब्लिश्ड है. ठीक है. तो ऑल दीस थिंग्स, व्हाट वाज द इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दीस एक्स्ट्रास इन द प्रोफाइल? सी व्हाट आई वुड से इज कि अगर आपके पास एक्स्ट्रास हैं तो शोकेस देम, राइट. आई वुडंट से इट्स अ मैंडेटरी थिंग कि आपके पास होना ही चाहिए. नाउ पेटेंट इज आउट ऑफ इंटरेस्ट, राइट. आपने एक ग्रुप के साथ काम किया, मुझे याद है यश का जो पेटेंट है, तो व्हेन यश सेंट मी द फर्स्ट रेज्यूमे, इट वाज फॉर 3 to 4 pages. it was 4 pages. 4 pages. And I told him कि यार हमें इसको 2 pages में लाना है. सर क्या हटाएंगे, क्या रखेंगे? मैं कहा ओके ठीक है, चलो कोई नहीं, we'll sit down and find the important stuff and make it valuable. जो चीज़ है सबसे ज़्यादा आपके लिए वैल्यू होल्ड करता है. So if you have a patent to your name, again it's very valuable, right? So these small things, yes, are important, but it is very student centric. मतलब I wouldn't say कि हर बंदे के पास वो रिसर्च होगा, right? Either someone would have heavy projects, someone would have heavy research. कोई inventor होगा तो he would have projects or patents. So these things depends on individual, but they matter a lot because it shows your expertise कि आपका expertise है उस area में. आप अपना expertise कैसे showcase करोगे? You'll either showcase it through any work that you have done, right? Any practical application of it, right? So your knowledge and expertise is a reflection basically of those research papers, of those projects, of those patents. So these things are important, particularly इस course में and eventually किसी भी technical course में I would say. Let's suppose अगर he came with a profile wherein there was no extras, right? क्योंकि अभी उनको he just freshly graduated. There would be students जिनको इतना आइडिया नॉलेज नहीं होता कि इतनी सारी चीजें करनी है, वो बस पढ़ाई करके मार्क्स आ गए, सब कुछ है, ठीक है. Right. Then what would have been the approach if at all that was the case? So at that point of time, हमेशा एक final year project एक student हमेशा करता है. The major project. The major project. हाँ. The major and minor project. हाँ. So I would have first recognized that. Okay. Again, added that to the profile. हाँ. Second is I would have looked for his interests.
कि इनका क्या इंटरेस्ट है. सो अगेन द सेकंड थिंग आई वुड गो फॉर इज सर्टिफिकेशंस. हाँ. हमारे को जरूरत नहीं पड़ी, but there will be students who would go for certifications, right, to enhance their profile, to make it more compatible with the course. Because in technical courses अगर आप जा रहे हो as a fresher too, अगर आपके पास 1 से लेके 2, 3, 4, 5 जितने भी projects हैं, they hold the value, they have that value. ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपके पास सब कुछ होना चाहिए. Even if you have those things, it is how you showcase it eventually. तो what I would suggest is अगर आप fresher हो, आपने कुछ नहीं किया है, अपना final year project अच्छे से दिखाओ. That's what I would suggest, right? And addition to that, do certifications, take up additional projects, even if it is ongoing, even if it is at the ideation stage, write it down in your resume. That's the key. That's the key. एंड एडिशन में यश आपको क्या लगता है यार, एक स्टूडेंट जो, बिकॉज आप उस फील्ड से ही हो, तो आपको क्या लगता है कि, और मेरे जो मैंने बताया वो तो बहुत टेक्निकल है, इसके अलावा एक आइडियल स्टूडेंट के लिए क्या उसको करना चाहिए विद इन द कॉलेज डेज, क्योंकि यू हैव बीन थ्रू दोस 4 years ऑफ इंजीनियरिंग, तो यू नो कि यार अच्छा किस टाइम पे स्टूडेंट क्या क्या कर सकता है. स्टूडेंट्स के लिए सर स्पेसिफिकली जो फाइनल ईयर होता है वो इम्पोर्टेंट होता है कॉलेज में. इंजीनियरिंग में स्पेसिफिकली मैं इंजीनियरिंग के बारे में बोलूँगा, क्योंकि फाइनल ईयर में मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में लाइक अक्रॉस इंडिया बहुत कम कोर्सेज होते हैं, तो उस टाइम पे बहुत टाइम होता है स्टूडेंट्स के पास. उस टाइम को कैसे स्टूडेंट यूटिलाइज करता है, दैट इज़ अ थिंग. क्योंकि अगर स्टूडेंट उस चीज़ को यूटिलाइज कर रहा है कुछ प्रोजेक्ट्स में, कुछ सर्टिफिकेशंस में, सो दैट विल क्रिएट एन इम्पैक्ट इन हिज प्रोफाइल. सो दैट्स इट. ठीक है, तो जैसे अभी रिसर्च पेपर्स हमारे बहुत है रश, तो एक गाइडलाइन दो टू स्टूडेंट्स हु वांट टू स्टार्ट राइटिंग अ रिसर्च पेपर, बिकॉज अराउंड रिसर्च पेपर इट्स अ वेरी बिग मिथ कि यार बहुत डिफिकल्ट होता है लिखना, एंड इट नीड्स अ लॉट ऑफ वर्क, प्रैक्टिस, इंग्लिश, ये वो बहुत सारी चीज़ें होती है. तो हाउ वुड यू सजेस्ट अ पर्सन, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे आई वांट टू स्टार्ट राइटिंग अ रिसर्च पेपर, तो हाउ शुड आई स्टार्ट एंड हाउ शुड आई गो अबाउट दीज जर्नल्स टू, बिकॉज पता नहीं वो पे कुछ चार्ज करते हैं, कुछ नहीं करते, क्या क्या मैटर करता है उसमें. So sir, for writing research paper, first step is reviewing the process. Okay. So जो भी टॉपिक है उसको रिव्यू करना होता है. That comes under the review part, जिसको एक रिव्यू पेपर भी बोलते हैं. बट जितना भी कुछ वेबसाइट्स लाइक साइट्स है लाइक मेंडले और गूगल स्कॉलर्स, जहाँ से आपके पर्टिकुलर एरिया ऑफ इंटरेस्ट में आपको लाइक आपके पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको मिल जाएगा. बहुत सारे जो अभी तक पब्लिश्ड वर्क है वो मिल जाएगा, और जब वो मिलता है तो उसको स्टडी करके वहाँ पे कौन सी चीज़ मिसिंग है वो अपने को फाइंड करना है. ओके, यस. और जब अगर वो चीज़ मिल गई सो यू आर गुड टू गो आगे. जस्ट उसके बाद तो राइटिंग पार्ट है. सो राइटिंग पार्ट इज नॉट डिफिकल्ट इन रिसर्च पेपर. सब लोगों को लगता है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी टीडियस काइंड ऑफ थिंग. मुझे भी लगता था लाइक टिल द सेकेंड ईयर ऑफ माई लाइक इंजीनियरिंग मुझे भी यही लगता था, क्योंकि मैंने तब तक रिसर्च पेपर सिर्फ ऐसे ऊपर से रखा, उसमें कुछ मैंने किया नहीं था. सो जब मैंने एक्चुअल रीड किया सो फॉर्मेट्स तो मैक्सिमम सेम है. जो हमारे हमने इन्वेंट किया, जो चीज़ हमने मिसिंग थी, जो हमने फाइंड की है, वो चीज़ तो हम ऐड करना है, वो चीज़ हमें ऐड करना है, और जो कॉन्टेक्स्ट है वो प्रीवियस चीज़ों का देना है. सो दैट इज़ द थिंग. बस अब जो बेसिक रिसर्च है उसमें ये आ सकता है. लाइक एक स्टूडेंट जो होता है इंजीनियरिंग में वो बेसिकली इतना तो कर सकता है कि हाँ नहीं कुछ तो जस्ट रिव्यू कर सकता है पेपर. जस्ट 10 पेपर्स को रिव्यू करे या फिर 15 पेपर्स को रिव्यू करे और एक रिव्यू पेपर लिखते हैं. एंड इफ यू पब्लिश दैट रिव्यू पेपर सो दैट विल क्रिएट अ वेरी गुड इम्पैक्ट. बिकॉज रिसर्च इंडस्ट्री में ये भी देखा है, लाइक मेरे भी जो मेंटर्स हैं उन्होंने भी बोला है कि रिव्यू पेपर से इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है. बिकॉज पहले से वर्क पब्लिश्ड है और उस चीज़ को हम लोग रिव्यू करके लाइक 15-20 पेपर्स को मिला के एक पेपर बना रहे हैं. सो हम जो बहुत बड़ा टास्क है, बहुत बड़ी चीज़ थी जिसको लाइक 150 पेज पढ़ना पड़ता पहले, 150 पेज, उसको अभी जस्ट 10 पेजेस पढ़ के जो पूरा क्रक्स है वो सब मिल जाएगा. दैट इज द थिंग. ग्रेट, परफेक्ट. तो यूएस जाना वाज इन योर प्लान ऑलरेडी? यस, मतलब और कोई कंट्री क्यों नहीं? यस, स्टार्टिंग में
USA, Germany, Canada, and Canada was on there. And Vienna, then, Austria, Vienna. Austria, yes, everything. हाँ Just I, फिर यूएस कैसे आ गए फ्रेंकली? मेरा प्लान ही था कि बेस्ट यूनिवर्सिटीज। ओके हाँ, सो दैट वाज द फर्स्ट थिंग। हमारे फर्स्ट सेशन जब हुआ था कार्तिक सर के साथ, तभी यही बात हुई थी, बेस्ट यूनिवर्सिटीज है वहाँ अप्लाई करना, जहाँ मिल रहा है बेस्ट जहाँ मिल चाहिए। रहा है, यस, बेस्ट यूनिवर्सिटीज चाहिए। सो व्हाट वाज योर ऑब्जेक्टिव कि मतलब बाहर हम बस ब्रांड नेम के लिए जा रहे हैं या व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव? ब्रांड नेम नहीं था मेरा ऑब्जेक्टिव था। मुझे लाइक एज आई कम फ्रॉम द रिसर्च एरिया, सो उस पर्टिकुलर फील्ड में चाहिए मुझे, दैट पर्टिकुलर एरिया वाज देयर। हाँ सो ये डिफिकल्टी भी आई थी कार्तिक सर के लिए, ये इतना स्पेशलाइज करके दिया है, अब इसमें से Niche ढूंढ के हो लो, गया, हाँ, इसमें से ढूंढ के लो लेके आओ कॉलेजेस, वो भी टॉप यूनिवर्सिटीज। दैट वाज द थिंग कि टॉप यूनिवर्सिटी चाहिए। एंड एक पॉइंट ऐसा भी आया था हमारे वक्त कि लाइक सर कोई एक यूनिवर्सिटी बोल रहे थे, इट वाज नॉट इन लाइक टॉप 20। ओके हाँ, और तो फिर हमने बोला कि ठीक है, थोड़ा एक वीक हुआ, तब तक हमने लाइक वो यूनिवर्सिटी पे ध्यान नहीं दिया। एंड आफ्टर दैट सर ने बोला कि नहीं, हम लोग टॉप 20 के अंदर की ही यूनिवर्सिटी डालेंगे। सो दैट वाज द थिंग, दैट वाज हैपेंड विद टेक्सास A&M एप्लीकेशन, बिकॉज़ डेडलाइंस बहुत क्लोज थे और डिसीजन लेने का टाइम ही नहीं था। नहीं बट ये ना कॉन्फिडेंस दोनों तरफ से आना चाहिए कि इफ यू आर सेइंग कि करना है अगर सामने से कार्तिक इज नॉट शोइंग दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस, फिर तो नहीं होगा, एंड वाइस वर्सा, राइट? तो ठीक है, एंड आई बिलीव कार्तिक देखो टू क्रैक दीज टॉप यूनिवर्सिटीज और बेस्ट स्कूल्स आउट देयर, एसओपी प्लेज अ वेरी वेरी वाइटल रोल इन सबको जो इतना कर रखा है यहाँ पे, उसको अच्छे से दिखाना इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, राइट? सो व्हाट वाज द स्ट्रेटजी फॉर दैट? ओके, सो SOPs के साथ द फर्स्ट थिंग वाज कि पहले तो एप्लीकेशंस भी फाइनलाइज्ड, दीज आर द यूनिवर्सिटीज, यहाँ पे हम एप्लीकेशंस डालेंगे। नाउ every set of university had different set of guidelines to answer the SOP, to write the like to answer the essays. Okay. I remember कि हमने chunks में we worked in chunks, we didn't work like एक करके या we worked all together, हमने chunks में काम किया। मैंने like हमारे applications team they fill the application, they send us the editing questions basically, what are the SOP questions. So what I did was कि to make it easier for Yash कि अपने वो inputs डाल पाए अच्छे से, मैंने वो क्वेश्चन को ब्रेक कर दिया इन सर्टेन पॉइंटर्स। नाउ टू गिव यू एन एग्जांपल, लेट्स से इफ द यूनिवर्सिटी हैज आस्क्ड कि काइंडली डिस्क्राइब योर ट्रेजेक्टरी, योर इंटरेस्ट, योर एकेडमिक बैकग्राउंड, रेलेवेंट रिसर्च वर्क एंड योर एस्पिरेशंस इन 500 वर्ड्स। ओके, सो दैट्स द होल थिंग। नाउ दैट आपको नहीं पता आपको कितना क्या बताना है। हाँ, एग्जैक्टली, राइट। सो व्हाट आई डिड वाज, जितने भी हमारे पास टास्क आए, व्हाट आई डिड वाज कि आई ब्रोक द क्वेश्चंस डाउन। लेट्स से माय इंटरेस्ट इज दिस, माय इंटरेस्ट के नीचे एक पार्ट टू गिव द इनपुट्स, देन मेरा रेलेवेंट बैकग्राउंड कैसे है, special inputs for that, then short term long term goals, then different sets of the inputs. So basically breaking down the question and answering it in that way. तो यश ने भी सिर्फ inputs दिए, I told him कि raw inputs दो, कोई दिक्कत नहीं है, we will get the inputs done and made the SOP from the team itself. And eventually the magic happened, because when you have those answers to specific questions and when you combine them, refine it, you get your perfect SOP. So I remember first SOP आया, थोड़े edits थे उसमें, but eventually that became a structure, that became a skeleton to work on for all the universities. Master SOP. Exactly. Yes. So that is the case कि SOP में again कि क्या showcase करें. So particularly हमारा जो specialization था, that was related to propulsion, and the work was related to propulsion. Everything was related to that field. So what we did was we found professors who had the same research interest, the clubs who are focusing on the same thing, and showcase those strengths there. Okay. So every SOP had that 2 paragraphs separate, where they are focusing on the university's research. Let's say एक course था हमारा Washington का, that is astronautics and aeronautics. Okay. That is focused towards astro, that is your space, and aero too. Right. तो वहाँ पे we were confused कि यार क्या लिखें, यहाँ पे क्या फोकस करें. So we made a combination of it, because इन्होंने ESAT करके कुछ दिया, worked on a project. EOSAT. EOSAT. Okay. Project like Earth Observational Satellite का प्रोजेक्ट था वो. So वो चीज़ हमने ऐड की.
उस चीज़ में। राइट, तो हमने वो वहाँ से ऐड किया, वो प्रोजेक्ट वहाँ पे ऐड किया एंड मेड इट इनटू इन अ कॉम्बिनेशन दैट ओके वी हैव एस्ट्रोनॉटिकल नॉलेज टू एंड वी हैव एरोनॉटिकल नॉलेज टू. Okay. So that's how we showcased it, and that's how the SOP turned out to be so good. Ki I remember Yash also was on his toes. Ki I'm sharing, I'm texting, he's reminding, reviewing it in like 10 minutes, done, and it's done, and we didn't face any problems with editing, and it was very smooth, very smooth. How did you say yes कि यार अब ये हो गया? How do you know कि this is the final one? Yes, तो लाइक एक आता है जिसमें सारे बेसिस है वो कवर हो जाए. That is the thing that I was looking for. So like when I received the first SOP, so at the time sir like sent it back for re-edit. Yes. Because there was some of the things which were not included, which were missing. Okay. The major missings was terms of research. Right. So those things after that the second recipe like this re-edit के बाद जो आया वो that was the USC's USC, and that was the best recipe. Yes. Like there was कुछ चांस ही नहीं था उसमें कि और कुछ ऐड कर सके या फिर लाइक दैट एक होता है ना परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ परफेक्ट दैट एसओपी वाज लाइक दैट इट वाज लाइक कंप्लीटली डिफरेंट जैसे परफेक्ट की डेफिनेशन होती है बस वैसा ही है एसओपी का उसमें और कुछ ऐड करके हम लोग उस एसओपी को खराब नहीं कर रहे थे दैट वाज द कन्वर्सेशन वी हैड. And SOP में majorly the flow is something which you have to take care of. अब ऐसा नहीं है कि मैं ऊपर अपने बैकग्राउंड के बारे में बात कर रहा हूँ. Start with my project, I start with my then research, and it's haphazard. So flow एक था जो मैंने हमेशा कहा किया नहीं maintain करते हैं. And how you maintain that flow is basically how well you know the person. ठीक है, यश एडिटिंग टीम को नहीं जानता, एडिटिंग टीम यश को नहीं जानती. It was me in between. यार हाँ फ्लो ऐसा होना चाहिए. आई रिमेंबर रीअरेंजिंग द पैराग्राफ्स एटलीस्ट थ्राइस कि यार कहाँ पे परफेक्ट लाइन एक ऐड हो जाए या एक पैराग्राफ का प्लेसमेंट परफेक्ट कनेक्टिंग पार्ट. एग्जैक्टली. सो द फ्लो टू योर एसओपीज इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपका फ्लो नहीं है नो वन विल रीड योर 2 पेज एसओपी. अग्रीड, एब्सोल्युटली, पॉइंट ही नहीं बनेगा. राइट, ठीक है. तो वन क्विक क्वेश्चन जो मैं पहले पूछना भूल गई थी रिगार्डिंग द कोर्स पार्ट. अगर अब हम बोल रहे हैं कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग किया बाहर जाके क्योंकि वो डिफेंस का पार्ट बन जाता है एंड देन इंडियंस और एनी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स दे डोंट गेट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क, व्हाट इज द अदर पॉसिबिलिटी, अदर कोर्सेज क्या हो सकते हैं एरोस्पेस के बाद? तो एरोस्पेस के बाद व्हाट आई फील इज कि एरोस्पेस एस्ट्रोनॉटिक्स लीविंग ऑल दोस असाइड डेफिनेटली मैकेनिकल इज द नियरेस्ट कोर्स दैट यू कैन गो फॉर. Apart from that, it depends on your interest. अगर यश को इंटरेस्ट होता है towards electrical or towards electronics, because planes में आपके वो parts लगते हैं, तो you could have gone for electronic engineering or electronics and communication engineering too, because वो सारे parts वहाँ पे use होते हैं. So there were major fields apart from these fields that a person can go for. Depends on the interest. Depends on the interest part. Anything that you feel इसके आगे और कुछ है because you have been in this particularly in aerospace में एक होता है एक part aeronautics. So that उसमें कुछ points है like उसमें कुछ areas है जो defense से related है. जैसे कि like जो aircrafts है normal aircrafts not a military aircraft. Not military but हाँ जो normal yes. So जैसे जिसमें Airbus है फिर Boeing कुछ काम करता है. So those are the areas. और इसके अलावा भी like there are few opportunities for students in JPL but like NASA's Jet Propulsion Laboratory. So वहाँ पे भी opportunities है but बहुत कम है. बहुत कम है, मिनिमल. ओके, ऑलराइट, ठीक है. तो यू कमिंग विद दैट माइंडसेट यश कि मुझे जाना है तो मैं टॉप में जाऊंगा नो मैटर व्हाट. हाउ डिड यू फाइनलाइज कि यार यही 10 यूनिवर्सिटी जो मुझे करना है, लाइक दिस इज द कंट्री, दीस आर माय 10 schools. Was it easy? Not at all easy. I remember कि हमारी shortlist started with US, went to Europe. I remember ETH, Germany, and it was like lot of options and all top names. No name like that I can say कि नहीं यार this is not in top 10, top 20 for aerospace particularly. Okay. So it wasn't easy. Again I think Yash और मैंने भी discussed
बहुत सारी चीजें थी टू टॉक अबाउट. आई थिंक यश आप बताओ उसमें क्या क्या हमने बात करा पर्टिकुलरली. लाइक हमने सारे पहले तो मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट था. ओके. दैट वाज द मेन थिंग कि मुझे ये ही एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे जाना है और इधर ही जाना है और नो अदर ऑप्शन. सो उसके स्पेसिफिकली उसके अराउंड हमने यूनिवर्सिटीज का जो शॉर्ट लिस्ट किया. एंड जब हमने लाइक कंट्री यूएस पे जब स्विच करना था फ्रॉम लाइक पूरे ग्लोबली सारे यूनिवर्सिटीज हैं, उसके बाद यूएस स्विच करने का रीजन भी यही था कि टॉप यूनिवर्सिटीज यहाँ पे थी. एंड द रिसर्च थिंग इज हियर. जॉब मार्केट भी ठीक है. स्पेसिफिकली एक पार्ट में है लाइक नॉट इन डिफेंस सेक्टर बट अदर अपॉर्चुनिटीज आर. और ये सारे पॉइंट्स थे जो लाइक हमने कंसिडर किए. उसके बाद भी कुछ चीज़ें थी लाइक फैकल्टीज, राइट, प्रोफेसर्स, वो सबसे मेन पॉइंट था. हाँ, हमने वो चीज़ें भी शॉर्ट लिस्ट की. इवन हर यूनिवर्सिटी के हर प्रोफेसर की लिस्ट बनी हुई है. सो इस हद तक रिसर्च किया हम लोगों ने. इवन हम लोगों ने लाइक मैंने कुछ चीज जो मिस की थी वो सर ने फाइंड आउट की. लाइक देयर वाज वन यूनिवर्सिटी, ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी. सो देयर इज अ न्यूक्लियर रिएक्टर इन दैट यूनिवर्सिटी एंड दैट आई वाज नॉट अवेयर ऑफ कंप्लीटली. How did you find out? I had to dig into the website. कुछ पता नहीं कहाँ से I was finding the like specializations too. So within that उन्होंने कुछ बहुत नीचे लिखा हुआ था कि they have this lab too or something like that, nuclear reacting something. तो that was amazing. मैंने कहा ये लिखते हैं. तो लिखते हैं यहाँ पे ये है. And Ohio State I think we had it shortlisted. It was in our universities. Again जो universities के name भी होते हैं ना, जैसे state universities होती हैं, they are even better than the private ones. And why do we say so? I say so because again the kind of funding and the grant they get, they are very much connected to the government, right? So आप कोई भी state university देखोगे for these technical courses, example Ohio State, I think वहाँ से हमारा offer नहीं आया. So why didn't it come? Because they are like, if you see the things that they are teaching, plus the kind of resources that they have is exceptional in those areas. So even Texas A&M, again, nobody gets in. That's the notion. Again, why fees come in, that is fine, but what kind of research they are doing, the kind of resources that they have, that's exceptional. So I think we found that. Yes. तो इसमें इंटरव्यू राउंड था? We had an interview rounds? No, just Columbia का था. Columbia का था. How did you crack that? Just there was a preparation thing happened like 3 sessions हुए थे इस माय ब्रेक की तरफ से जो हुआ था. That was the thing. बस उसके अलावा कुछ नहीं. Just मैंने लैपटॉप ओपन किया और 3 minutes का इंटरव्यू था. That was just a कीरा इंटरव्यू, कीरा kind of. अच्छा, कीरा इंटरव्यू. Yes. So 3 minutes का इंटरव्यू था. But were you scared क्योंकि इंटरव्यू सुन के usually students are like इंटरव्यू डर जाते हैं. But practice हो गया था. That was the thing. So That's it. So as a student, what was your major concern? Starting से लेके end तक कुछ एक चीज हो गया, ये मिलेगा. Is it about the university? कि what was your concern? Admit आएगा या नहीं? That was the main. और because ये we were कहाँ से आएगा? ये नहीं था कहाँ से आएगा एडमिट, ये था यार आएगा कि नहीं आएगा. अभी we are having 4 offers. 4 to 5 offers. 4 to 5 offers. Nice. That was the concern because सारे हमने जो यूनिवर्सिटीज शॉर्टलिस्ट की थी वो टॉप यूनिवर्सिटीज थी. And तो उनका I was adamant on that point. मुझे इसी में जाना है. So सर ने बोला भी था like backup options रखते हैं. नहीं सर जाना इसी में. But that's a very good thing that you are starting से clear हो यश कि मुझे यही करना है, यही जाना है, no matter what. आधे students mainly in this era क्योंकि options इतने सारे होते हैं ना, they tend to get confused. Yes. कि क्या करना है क्या नहीं करना. ठीक है, ऑफर आ गया, घर वाले कैसे रिएक्ट कर रहे हैं? Are they happy? Yes, बहुत ज़्यादा आते थे. उनको दुखी हो रहा कि my son is going. No. मैं last 7 years से मैं बाहर for education. Yes. So that is not their concern. But वो लोग इस चीज़ से खुश है, बहुत अच्छी जगह जा रहे हैं. Right. Exactly. The money they are investing is वो
बहुत अच्छी जगह जाते हैं. Yes. That's the thing. उसका ROI भी, return of Return of investment, investment. absolutely Correct. it is worth everything. So you're the first one to move abroad, by the way. Yes, from my family I'm the first. From your family, you're the first one. The US में any known people, friends, relatives कोई है? Friends है, like हाँ. दूर के relatives है. सब दूर के हैं, but you are the first one. Yes. Great. Perfect. ठीक है. And अभी वीजा में हो, you started with your visa process. You are connected with Prachi, Prachi, right? yes. क्या चल रहा है वीजा में? Slot. सबसे बड़ी प्रॉब्लम, the constant problem is slots. Slot. Slot booking. बाकी सब तो 2-3 दिन में हो गया. हाँ हाँ. Everything. तो finances कैसे sort करे? Finances शुरू में like personal funding जो है मेरी और loan. हाँ. There is one education loan plus personal funding. पर्सनल फंडिंग. Yes. हाँ. तो ये पहले से फाइनेंस भी क्लियर थे, देयर वाज finance भी नथिंग कि clear. इसके पीछे आना भागना नहीं. बट अभी बस एक ही स्लॉट मिल जाए. Yes, बस not. ठीक है, बढ़िया. ठीक है, तो यार मेजर पार्ट अभी व्हेन वी आर स्पीकिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, राइट, हर हम इंडियंस का स्पेसिफिकली होता है यार फ्री में मिल जाए कुछ चीज, तो वी एक्चुअली ट्राई टू सेव अप 10 रुपीस एज वेल. Yes. सो डिड वी अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप्स? Yes, we did. So we applied for like 2 to 3 external scholarships. एक्सटर्नल स्कॉलरशिप्स. Yes. हाँ. हाँ, internal scholarships का ऐसा था like जो कोर्स है हाँ. उसके हिसाब से स्कॉलरशिप मिलना बहुत मुश्किल है. व्हाई एग्जैक्टली? Because होता क्या, when you are applying to technical courses and when you are going to these big universities, they have certain funding allotted to them. Okay. So they give preferences to the domestic students more. ओके. Yeah. हाँ. So that is why, and plus ठीक है, the profile was fine, there was nothing wrong with the profile, but again it depends on your luck too. हाँ. मिलेगा नहीं मिलेगा वो एक question हमेशा रहता है. Agreed, But हाँ. I think eventually if you see all the top universities that we have gotten offers from, funding and scholarship, they are majorly are not there. Majorly, I would say. Plus in this particular course specifically, वहाँ पे fund नहीं होता scholarships का opportunity ज़्यादा. Okay. And इसीलिए हम external apply करते हैं. तो we apply to a lot of external scholarships. Yet to receive a response. उसके अच्छा, साथ we साथ- yet to receive a response. Yes, yes. So what was the process of application? Like scholarship essay लिखना था? Yes, Scholarship essay. ऐसे लिखना था and then letter of motivation. Right. That was application fee waiver. We got through any? We just got Columbia's. Columbia's. Columbia का fee waiver. Fee. What was the drill for that? Just like there was something. I don't know. I There was an event and then we cold emailed a lot of times to the university that this is our अच्छा. profile and this, so they gave us a paper. अच्छा, तो rigorously हम पीछे पड़े हुए थे यार. हम पीछे पड़े हुए थे कि दो हमें fee waiver दो because We actually got. And Yeah. what was the application fee though? Columbia के फिर मतलब? It was 85. 85. 85. Yes. You saved up. Nice. चलो बढ़िया. So अभी हम सितंबर में will be there in US. वीजा मिल जाएगा. ठीक है. तो ठीक है. What are you most excited about? First university. हाँ. Like I really calling it. Dream नहीं किया था कभी. So. It's a dream come true. Yes. तो पार्ट टाइम जॉब का कुछ सोचा है? Because you Yes. connect Yes. with a lot of people I think. Yes. हाँ. So PA, RAs. हाँ. And there are opportunities of grader positions. हाँ. तो कोलंबिया में ये सारे अपॉर्चुनिटीज हैं. हाँ. तो लाइक सर के साथ भी डिस्कस हुआ था कि हाँ. प्रोफेसर्स से हम लोग कनेक्ट करेंगे. हाँ. सो एक लिस्ट ऑफ प्रोफेसर्स हमने एक We have started connecting? यस. अच्छा. बट उन लोगों का होता है ना लाइक प्रोफेसर्स का लाइक मई इनटू जून और जुलाई इस टाइम में दे आर They're free. So उस टाइम पे अगर हम Why कांटेक्ट करते exactly हैं are they free at that time? तो Academic calendar के हिसाब से. अच्छा, They have yes. summer हाँ. breaks and हाँ. everything going on. so उस टाइम पे हम लोग अगर कनेक्ट करते हैं तो इट विल बी मोर बेनिफिशियल. ठीक है. Actually it's brilliant. तो ठीक है. All right. So your journey at ACE Prep starting एक साल होने को हो जाएगा अभी तो यस. How has it been? And I really wanted to be pretty raw with each and every statement. Record हो रहा है करके मत बोलना. But actually, how was your entire journey? So my journey was really good. Like it was great. Everything like from application, from like IELTS preparation, from profile building, like university selection, from visa applications, and everything at each and every point. Like my CS, Karthik sir helped me. Okay. So every point at sometimes we had a conversation at 8 or 9 at evening. हाँ हाँ.
So at that time also he replied. हाँ नहीं, that is one thing very commendable about Karthik. जो कार्तिक के students होते हैं रात के 2 बजे भी चाहिए होगा, he would be there, ठीक है करना है because we also understand one thing is कि यहाँ पे ना we are not selling fruits or vegetables, we are actually we are dealing with somebody's career and future. एक step यहाँ का वहाँ हो गया, the entire dimension would change, right? So that's a commendable job, Karthik. Yes, how did you get to know about us? मतलब we for sure know we are not a very big fish in the market, Yes. right? So how did you get to know about us? Just like search Google search here तो so like the main point of attraction was your rankings, like those Universities कोई partner नहीं है all the top Partner schools. नहीं है. हाँ हाँ हाँ. एंड जब मैंने पेज को गो थ्रू किया सो दैट वाज अ गुड दैट वाज द थिंग लाइक ये जेन्युइन थिंग है जो चाहिए एक्चुअली. इसके अलावा और कुछ चाहिए बाकी लाइक ऑल अदर थिंग्स दैट डजंट मैटर. जो भी होता है बाकी सारी चीजें वो मैटर नहीं करते, जो चीजें मैटर करते हैं वही लिस्ट होती है. हाँ. सो दैट वाज द थिंग. और जो रेटिंग्स थे ऑनलाइन ऑफलाइन का डर नहीं था कि यार मैं तो यू फ्रॉम बॉम्बे राइट, बॉम्बे में हूँ, कंसल्टेंसी दिल्ली स्पेसिफिकली, वो डर नहीं था ऑनलाइन ऑफलाइन का. नहीं वो लाइक लगा नहीं लाइक फर्स्ट आई वाज कनेक्टेड. हाँ यू कनेक्टेड. बाद में जब कार्तिक सर से कनेक्ट हुआ तो वो एक बन गया बॉन्ड बन गया. सो दैट वाज द थिंग. हाउ वुड यू रेट योर जर्नी ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 एंड बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है? 10 being max and 1 being the lowest. 10 is the like बहुत कम नंबर है. बिकॉज आई वाज नॉट मैं ये बोल सकता हूँ कि आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस कॉलेज, दिस यूनिवर्सिटी. आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग व्हेन आई वाज प्लानिंग इन द मंथ ऑफ जून last year. I was not expecting Columbia University at all, but I got Look at you right now, Yes. just sitting with So, these in your office. yes. Any words for your CS? He is just accepting. ठीक है, that's it. So thank you so much, Yash. Thank you, Karthik, for being a part of the podcast. Thank you, ma'am. And yes, we'll see you soon. Visa आ जाएगा, Yash. Don't Yes, worry, yes. ठीक है? Prachi is on it. So at Ace My Prep, every student is a story. A story where we want to make our students the hero. Today we had with us Yash, our Columbia admit, and stay tuned for next podcast for the Fall Series 2024.